Hello students, today we will discuss about the म्यूकर। म्यूकर की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसको अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन जाइगोमाइकोटेना, क्लास जाइगोमाइसिटीज, ऑर्डर म्यूकोरेल्स and the family is Mucorrhaceae. Mucor, it is the most common member of the Mucorrhaceae and it has more than 100 species. They are commonly known as pin mold और black mold. म्यूकर को कॉमनली जो है पिन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड कहा जाता है और इसकी जो ज़्यादातर स्पीशीज़ होती हैं वो सेप्रोफाइट होती हैं और जो है वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के ऊपर ये ग्रो होती हैं, जैसे फूड स्टफ्स हैं और ये स्पॉइल करती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जैसे ब्रेड को, जैम्स को, जेलीज़ को एंड ओवर राइप फ्रूट्स, सिरप्स एक्सेट्रा। एंड कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं म्यूकर की, दे आर कॉप्रोफिलस, दैट इज़ दे आर डंग इनहिबिटिंग, एंड अ फ्यू आर स्ट्रिक्टली टेरेस्ट्रियल, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। And in the air, the common species which are found and they contaminate the air, they are Mucor mucido and Mucor racemosus. Now Mucor can be grown in the laboratory very easily. ब्रेड का पीस हम लेते हैं, अगर हम उसको लेबोरेटरी में ग्रो करना चाहें म्यूकर को, एक ब्रेड का स्लाइस लें, उसमें थोड़ा सा उसको मॉइस्ट कर लें पानी से एंड देन कीप इट एट रूम टेम्परेचर and within 2 or 3 days you will find a white cottony woolen growth on the bread, and this is the mucor. Now species of mucor are known to cause mucormycosis. Mucormycosis disease जो है वो cause करता है in domestic animals and human beings. It infects vital organs like lungs, brain etc., which may cause even death of the organism. Now the vegetative structure. The thallus of mucor consists of highly branched coarse cenocytic mycelium which forms white, grey और brownish cottony growth on the substratum. Substratum के ऊपर जो है म्यूकर ग्रे और brownish cottony growth बनाता है and mycelium is differentiated into aerial and prostrate hypha. You can see this diagram, A diagram. It is differentiated into the prostrate and aerial hypha. The branches of the mycelium are usually tapering to fine points. The prostrate hypha serve the function of absorption. जो prostrate hypha हैं वो क्या करते हैं? They serve as the function of absorption. And young hypha without septa, but they appear in older hypha. In anaerobic liquid cultures, especially in the presence of carbon dioxide, the hyphae break into form yeast-like bodies. This stage of fungus is referred to as torula condition. If oxygen is made available, it reverts to filamentous state. The wall of the hypha is made up of chitin, जिस तरह से फंगस में होता है जो वॉल होती है, it is made up of chitin, microfibrils and chitosan. Besides these, polysaccharides, proteins, lipids, purines, pyrimidines and a few minerals like calcium and magnesium etc. are also present in the cell wall. Now we come on to the reproduction. Mucor reproduces by both methods, that is by asexual method and the sexual method. First of all, we'll take the asexual type of reproduction. In the fungus reproduces asexually by the following methods. First method is the fragmentation. Now विखंडन जो हम कॉमनली बोलते हैं, मैकेनिकल इंजरी में ब्रेक द वेजिटेटिव माइसीलियम इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू माइसीलियम. बहुत कॉमन है ये कि अगर माइसीलियम जो है उसके जो हाइफा हैं वो किसी मैकेनिकल इंजरी के कारण टूट जाते हैं और क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं एंड ईच फ्रेगमेंट और ईच पीस हैज़ गॉट द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग द न्यू माइसीलियम. So this is the method of reproduction called as fragmentation. Second method is by chlamydospores. These are formed under unfavorable conditions. Chlamydospores जो होते हैं वो unfavorable conditions में बनते हैं. In anaerobic conditions, the tips of the hypha become septate. जो tips होती हैं hypha की वो septate हो जाती हैं. Each segment secretes a thick wall and assume a round shape.
दीज आर कॉल्ड एज क्लामाइडोस्पोर्स। वो क्या करेगा, जो टिप पोर्शन है वो राउंड हो जाएगा और वो थिक वॉल्ड हो जाएगा और इसको अब हम बोलेंगे क्लामाइडोस्पोर। दे कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू माइसीलियम व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल। ये क्या करते हैं, दे जर्मिनेट, they remain dormant in the unfavorable conditions, and when the conditions become favorable they start germinating. And third method is by aplanospores or sporangiospores. This is the most common method of multiplication. The haline branches of mycelium which bear sporangia at their tips are known as sporangiophores. जो हाइफा होते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं हाइफा की जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं उनको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। जिस तरह से जहाँ पे कोनिडिया बनते हैं उनको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं, यहाँ पे हम स्पोरेंजिया बोल रहे हैं, इसके लिए हम स्पोरेंजियोफोर्स बोलेंगे। इन सम स्पीशीज ऑफ म्यूकर, एग्जाम्पल म्यूकर प्रोलिफेरस, द स्पोरेंजियोफोर्स आर ब्रांच्ड, कईयों में ब्रांच्ड भी होते हैं। इन सच केसेस द टर्मिनल स्पोरेंजियम इज लार्जर देन द लेटरल्स। The tip of the sporangiophore swells and cytoplasm along with nuclei move into this part. अब इसमें क्या होता है, जो स्पोरेंजियोफोर होता है उसका जो टिप पार्ट होता है वो थोड़ा फूल जाता है, बढ़ जाता है, और इसमें जो है साइटोप्लाज्म इट मूव्स इनटू द टिप पार्ट जो कि फूल गया है, और कुछ न्यूक्लियाई भी उसके पार्ट के अंदर चले जाते हैं, और वो जो स्वॉलन टिप है ग्रेजुअली इनलार्जेस एंड इवेंचुअली डेवलप्स इनटू अ स्पोरेंजियम। ये जो आप देख रहे हैं बी डायग्राम, इसमें ये देखिए अब हाइफा है और वो धीरे धीरे इसका जो टिप पार्ट है वो फूल जाता है और उसमें इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिया जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। एंड नाउ टुवर्ड्स मैच्योरिटी द कंटेंट्स ऑफ स्पोरेंजियम गेट डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टल मल्टीन्यूक्लिएट डेंसली साइटोप्लाज्म स्पोरप्लाज्म and the central cylindrical or subglobose highly vacuolated nuclei free sterile columeplasm. अब आप ये देख रहे हैं the latter eventually forms a columella. जो सी डायग्राम में आप देख रहे हैं उसमें जो ये स्पोरेंजियम बना है, स्पोरेंजियम वॉल है, और जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ द पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियाई भी होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है, और बीच का पार्ट जो है कॉल्यूमेला है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इट इज़ वैक्यूलेटेड। अ डोम शेप्ड सेप्टम सेपरेट्स द डिस्टल पार्ट फ्रॉम द कॉल्यूमेला। अब देखिए डोम शेप जो है सेप्टम बीच दोनों के बीच में बन जाता है और दोनों पार्ट्स को कॉल्यूमेला का और पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म को सेपरेट कर देता है। द कंटेंट्स of the distal part is cleaved into a large number of 2 to 3 nucleate spores. All the spores are almost equal in size, but in Mucor proliferus, the spores formed in the terminal sporangium are larger than those produced in the lateral sporangium. अब इसमें क्या होता है, जो पेरिफेरल प्रोटोप्लास्ट है आप देखिए वो क्या करता है, उसके अंदर में स्पोरेंजियोस्पोर्स बन जाते हैं, कई सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स देख रहे हैं आप, और एट मैच्योरिटी द स्पोरेंजियो वॉल dissolves and the spores usually remain firmly adhered to the columella. अब इसमें देखिए जो स्पोर्स बनते हैं, कई सारे स्पोर बनने इसमें डिस्टल पार्ट में जो हुआ है कई सारे बड़े बड़े 2 से 3 न्यूक्लिएट स्पोर्स बन जाते हैं इसमें, यू कैन सी। एंड व्हाट विल हैपन एट मैच्योरिटी द स्पोरेंजियल वॉल डिसॉल्व्स। ये जो स्पोर बने आप देखिए एफ डायग्राम देखिए आप, ये कई सारे स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं इसमें, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियम वॉल जो है वो डिसॉल्व हो गई है, बीच में कॉल्यूमेला है, नीचे स्पोरेंजियोफोर है, और जो स्पोर होते हैं दे यूजुअली रिमेन फर्मली अदर टू द कॉल्यूमेला, ये कॉल्यूमेला के साथ चिपके हुए रहते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स या स्पोर्स। दे आर डिस्पर्स स्लोली बाय विंड, और धीरे धीरे वो क्या होगा, दे आर डिस्पर्स स्लोली बाय द विंड, एंड्स और इंसेक्ट्स, एंड्स के और इंसेक्ट्स के द्वारा या विंड के द्वारा वो उनका डिस्पर्जन होता है। और इन म्यूकर प्लैम्बेलिस द स्पोरेंजियम वॉल ब्रेक्स इनटू पीसेस।
In some species, however, the sporangium burst, releasing the spore into the air. और कई बार क्या होता है कि इसमें प्रेशर क्रिएट होता है स्पोरेंजियम के अंदर और वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाती है इसकी वॉल, और जो स्पोरेंजियम होते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं, वो हवा में बर्स्ट होकर रिलीज हो जाते हैं. द स्पोर्स आर डार्क, यूजुअली एलिप्टिकल टू अवॉइड, शेप इनकी एलिप्टिकल और अवॉइड होती है. द स्पोर्स जर्मिनेट when they fall on a suitable substratum by a germ tube and form a new mycelium. अब ये जो स्पोर बने वो क्या होगा, हवा के द्वारा उनका डिस्पर्जन होगा, एंड व्हेन दे विल फॉल ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम, उनको कोई सबस्ट्रेटम मिलता है, बिकॉज इट इज़ अ सेप्रोफिटिक फंगस, उनको सबस्ट्रेटम मिलता है, तो वो जर्म ट्यूब बनाएंगे और जर्म ट्यूब से एक नया माइसीलियम क्रिएट करेंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने आपको बताया कि इट इज़ बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय क्लामाइडोस्पोर्स and by formation of sporangiospores. In the next lecture we will discuss about its sexual reproduction.